أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد بارش کے لیے صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بات بتا دیجیے آپ کو کہ یہاں بیٹھ کر بولنا آسان ہے، آپ لوگوں کی جگہ پہ بیٹھنا مشکل ہے. حقیقت میں صرف 5 منٹ کے لیے وہاں بیٹھی ہوں تو بس آخری سانس چل رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آپ کا حوصلہ ہے. آج میں آپ کو دعوت دوں گی، آپ لوگوں نے مجھے نہیں دینی. میں سمجھ گئی آپ کی نہ بولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. اتنی شدید گرمی میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور خدا ہم پر رحمتیں نازل کریں. اور اتفاق کے صدقے میں بالخصوص امام وقت کے صدقے میں اور آج کے دن چل رہے ہیں دنوں کے صدقے میں رحمت کی بارش ہم سب پر برسائے اور موسم میں کچھ ٹھنڈا کا آ جائے اور پروردگار ہم سب پہ اپنے خاص رحمت نازل فرمائے اور بالخصوص امام وقت کے زور میں تاثیر عطا فرمائے. صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار کے لیے جلائی کے تعریف ہے. درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے جلائی کے درود و صل سلام. على اچھا یہاں سے لے کے وہ وہاں تک جو ہے وہ بدیری صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیگر صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلسل ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے سچوں کے ساتھ گزارو. میری آنٹی آج ہی آئی ہے تو آج کو بتاتی چلو کہ ہماری جو آج تقریر ہے وہ اپنے 6ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 6ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. آج 6 محرم الحرام ہے اور مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو نئے چہرے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ہم نے سچوں کی بات کی ہے. اب جس کے ذہن میں جو سچا ہے وہ اسی کا تصور کیجئے. جو جس کو سچا سمجھتا ہے بس اسی کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ سچا کون ہے. اچھا مسلسل مباہلے کی اوپر ہم نے بات کی ہے. تو مباہلہ کیا اللہ کے رسول لے کر گئے ایک قافلہ. آگے عیسائیوں نے کیا کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، ہل جائیں گے یا منتشر ہو جائیں گے. ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے عظمت والے چہروں کو دیکھا. انہوں نے عظمت والے چہروں کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. یعنی آل محمد کی مقابلے میں وہ نہیں آئے. عیسائی آج بھی احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی احترام کرتے ہیں عیسائی بالخصوص سادات کا. اگر امام آ جائیں گے تو پھر ویسے ہی ان کا بھی احترام کیا جائے گا جیسے ان ہستیوں کا کیا جاتا ہے. تو ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچا وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر دے تو سچ کہے، کبھی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات جھوٹی کہے اور کوئی بات سچی کہے. صحیح ہے. میں مثال دوں یہاں پہ اور تھوڑا سا آپ کی گرمی کو بھی دور کر دوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو ایک خبر دوں. جیسے میں کہوں کہ امنا نے آج جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی ہے. مثال دے رہی ہوں، ایسا ہے نہیں پڑھی ہوگی. ایک خبر دے رہی ہوں حالانکہ آپ کے سامنے یہ بچی روز نماز پڑھتی ہے. آپ مجھے کہیں گی کیسی ہے یہ، ممبر پہ بیٹھ کے مجلس بھی پڑھتی ہیں اور یہ خبر بھی ایسی دے رہی ہے جو ماننے کے قابل نہیں ہے. خصوصاً کے گھر والے کہیں گے یہ کیسی ہے، وہاں ممبر پہ بیٹھ کے ہماری توہین کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھی یہ خبر دے رہی ہوں میں آپ کو، لیکن یہ خبر جھوٹی ہے. آپ مجھے سچا نہیں کہیں گے.
जो निजी तौर पे इसको जानते हैं, आमना को जाती तौर पे इसको जानते हैं, वो कहेंगे इसने तो कभी नमाज छोड़ी ही नहीं है। अगर छोड़ी है तो हम पढ़ने लग जाना। जो है वो नहीं छोड़ती है ये नमाज, और बाजी ने कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ी इसने आज, यानी इसने खबर झूठी दी है। तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे ऊपर, यानी कि मैं झूठी झूठी खबरें भी कभी कभी देती हूँ, हमेशा सच नहीं बोलती। बंदा वो सच्चा होता है जो हमेशा सच बोले, बेशक यानी दुश्मन भी उसकी सच्चाई की कसम खाए, बेशक वाह वाह दुश्मन भी कहे कि ये सच्चा है, बेशक जब भी कहे सच बात कहता है, जो बोले सच होता है, जो खबर दे वो सच होती है। यानी दुश्मन भी इकरार कर रहे हैं ये सच्चा है, बेशक ये सदीक है, बेशक ये सादिक है। अच्छा, अल्लाह ने एक और नबी को भी सदीक कहा है। हाँ अगर आप अपनी समातों को मेरी आवाज़ों के साथ जोड़ लें तो मैं आपको बताती चलूं, बहुत बड़े नबी हैं ये। वो नबी है जिनको अल्लाह ने एक ओहदा नहीं 3 ओहदे अदा किए हैं। अल्लाह ने इस नबी को नबूवत दी है बगैर मांगे, रिसालत दी सवाल किए बगैर, दोनों ओहदे अदा कर दिए हैं। लेकिन अब ये नबी है जो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा इमामत भी मेरी ज़ुर्रियत में रख। आप समझ गई मेरी कुछ बहनें, इस नबी तक पहुंच गई हैं। दुआ कर रहे परवरदिगारा इमामत मेरे ही ज़ुर्रियत में रख दे। अब अल्लाह ने इम्तिहान लिया, नबूवत दी थी, कोई इम्तिहान नहीं लिया, बगैर मांगे दी। रिसालत दी तो कोई इम्तिहान नहीं लिया, बगैर मांगे दी। अब इमामत की बात आ रही है, अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि तू इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे, तो अब इम्तिहान लिया जा रहा है, आग में डाला गया। अल्लाह ने कहा इब्राहिम सदीक नबी है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलना। अच्छा, सदीक बड़ा होता है या सदीक अकबर? थोड़ा सा मेरे साथ बोलते हैं ना, जिस सदीक अकबर का आपके ज़हन में आया है ना, हाँ जी आवाज़ पड़ लीजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद। मैं बताने जा रही हूँ कि सदीक अकबर कौन है और सदीक कौन है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम सदीक नबी है, इब्राहिम सदीक नबी है, यानी हमेशा सच बोलने वाला नबी है। अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मेरी ज़ुर्रियत में इमामत रख दे। अल्लाह ने इमामत इनकी ज़ुर्रियत में रख दी। आगे चलिए, जनाब इसहाक की नस्ल से बहुत सारे नबी आए हैं, लेकिन जनाब इस्माइल की नस्ल से जो छुरी के नीचे ज़िबा हो गया, तो 10 ज़िलहज को हम जिनकी कुर्बानी करते हैं, जिनकी जो है याद को ताज़ा करते हैं, वो नबी, उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं आया एक नबी के अलावा। खतमुल अंबिया आए हैं, खतमुल मुरसलीन आए हैं, आपके और मेरे अल्लाह के हबीब आए हैं, आपके और मेरे रसूल आए हैं, आपके और मेरे नबी आए हैं। इसके अलावा और कोई नबी नहीं है जनाब इस्माइल की नस्ल से, लेकिन इमामत इसी नस्ल में रख दी गई। वही दुआ जो इब्राहिम मांग रहे हैं, परवरदिगार इमामत मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। इब्राहिम की दुआ कबूल हुई और इमामत इसी ज़ुर्रियत में रख दी गई है। का इम्तिहान के बाद अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इब्राहिम ने इम्तिहान दिया, 100% नंबर लेकर पास हो गए। अब अल्लाह ने इमामत दे दी। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने सनद दी है, इब्राहिम सदीक नबी है। बस यूँ सर हिलाते हैं ना, वरना मैंने पहले कहा कि आज आपसे दाद नहीं मांगूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से आपका हौसला बहुत बुलंद है। अच्छा, इब्राहिम तू सदीक नबी है, अल्लाह ने सनद दी है आपको। नबी इब्राहिम को सनद दी है कि तू सदीक नबी है, सदीक नबी है, तुमसे बड़ा कोई सच बोलने वाला नहीं है। परवरदिगार कोई तो होगा जो इनसे भी बड़ा सच बोलने वाला होगा, इनसे भी बड़ा सच बोलने वाला होगा, कोई तो होगा। इब्राहिम सबसे बड़े नबी तो नहीं है ना, नबी हैं, रसूल हैं, इमाम हैं, इमाम है ना, इमामत मिली है ना, आप हाँ में तो हाँ मिलाए ना जी, बेशक इमाम भी तो है ना, बेशक रसूल है, बेशक नबी है, बेशक इमाम है, बेशक। अच्छा, इब्राहिम के पास 3 ओहदे हैं, फिर भी वो बड़े नबी नहीं है। अच्छा, उलुल अज़्म नबी कितने हैं? मशवरा कर ले। उलुल अज़्म नबी कितने हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 5 है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं इब्राहिम नहीं है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। 5 नबी है उलुल अज़्म, उनमें इब्राहिम का नाम नहीं है।
थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ, मैं आपको सद्दीक के बारे में बता रही हूँ। आदम को अल्लाह ने बनाया है, नूह को बनाया है, पे दर पे अल्लाह नबी बना रहा है। 1,24,000 नबी। अभी आप सुन के आए हैं पूरी तकरीर, बार बार मैं यही बात बता रही थी, यहाँ नहीं बताना। वो ऐसा ना हो गया आप कहें बस ये 1,24,000 का आदत याद कर लिया बाजी ने तो बस यही सुनाती रहती है। नहीं, अल्लाह ने इतने नबी बनाए हैं, इतने नबी बनाए हैं, चप्पे चप्पे पे अल्लाह नबी भेज रहा है, दरिया दरिया में अल्लाह नबी भेज रहा है, गली गली में नबी भेज रहा है, बस्ती बस्ती में अल्लाह नबी भेज रहा है, शहर शहर में नबी उतर रहे हैं। ये नबी आ रहे हैं, अल्लाह नबियों को भेज रहा है, लेकिन फिर भी उनमें कोई बड़ा नबी नहीं है। पैदल पे अपने ओहदे पे कायम है। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई बाद में आया, कोई बाद में आया, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, लेकिन जो आखिर में आ रहा है, अल्लाह कह रहा है ये सबसे बड़ा नबी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है ये सबसे बड़ा नबी आया आखिर में है, लेकिन बड़ा सबसे है, यानी सबसे आखिर में आकर सबसे बड़ा नबी है। परवरदिगार इतनी देर तक कहाँ छुपा के रखा था, कहाँ रखा हुआ था नबी को? अल्लाह ने कहा ये हिजाब कुदरत में था, सुभान अल्लाह। मैंने इनको हिजाबात में रखा है। ये हिजाब अज़मत में था, हिजाब बरकत में था, ये हिजाब आज में रहा है। ये नबी आखिर में आया है, लेकिन पहला नबी है, यानी सबसे बड़ा नबी है। परवरदिगार तूने कहा सदीक नबी इब्राहिम है, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला है। अच्छा, अब एक हदीस में है कि हमारे कंधों पर 2 फरिश्ते बैठे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, सबके बैठे हैं, बेशक। किसी के ना बैठे हो, सबके बैठे हैं। किरामन कातिबीन, अच्छा इनके नाम तो आते हैं ना, वो हर वक्त बैठे हुए हैं। क्या लिख रहे हैं? जो हम अमाल करते हैं वो लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो करते हैं, जो अमल करते हैं वो लिखते हैं। अच्छा, जो है नेकी लिखने वाला वो सीधे कंधे पे बैठा हुआ है, और जो बदी लिखने वाला वो इधर। अच्छा, बदी लिखने वाला कभी कभी फारग बैठता है, लेकिन नेकी लिखने वाला फारग नहीं बैठता। आप मुझसे सवाल करो क्यों? नेकी लिखने वाला फारग नहीं बैठता है, लेकिन जो बदी लिखने वाला है वो कभी कभी फारग बैठता है, सुकून कर लेता है, जी जी, आराम कर लेता है, लेकिन नेकी लिखने वाला क्यों नहीं बैठता? बिस्मिल्लाह। जो भी शख्स दिल से मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेजता है वाह, सुभान अल्लाह, और दोबारा भेजने का इरादा करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अच्छा, मैंने शायद दूसरी या तीसरी मजलिस में कहा था कि 70 साल के बाद आप दोबारा दरूद पढ़ें। अच्छा, बातें मेरी मिक्स हो जाती है वो इस वजह से कि जो 3-4 मजालिस में मैं एक ही बात कहती हूँ ना, और आप लोगों से तो वो फिर ये नहीं मुझे मालूम हो पाता। ज़ाहिर इंसान हो ना, तो कभी भूल जाता है कि ये इधर कही थी, माँ बरखा पे कही थी, किसी के घर में कही थी। बहरहाल आपसे ही कही थी कि 70,000 के बाद आप जब दोबारा दरूद पढ़ते हैं तो वो फरिश्ता सदा देता है, और सदा दे के आपसे कहता है कि अभी पहले वाला दरूद जो है उसका सवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, कि आप दोबारा से दरूद पढ़ रहे हैं। यानी ये जो इधर बैठा है ये जो इस कंधे पे बैठा है वो मुसलसल लिख रहा है। और इससे बड़ा भी एक अमल आज पता कर जाऊं। अब जब आप चाहते हैं कि जन्नत में आपका घर बन जाए, यानी किरामे कातिबीन तो आपके अमाल लिख रहे हैं, आपका पलड़ा भारी हो रहा है। अब चाहते हैं आपके एक महल मेरा जन्नत में भी बन जाए। यहाँ तो किसी के पास घर है, कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ तो घर होना चाहिए ना। मौला का फरमान भी है कि जो यहाँ गुर्बत में जिंदगी गुजारता है या जिनके पास जिस चीज़ की कमी होगी आखिरत में उसको अदा कर दी जाएगी। अब वहाँ एक महल चाहिए आपको भी और मुझे भी। अब जब हम जो है मजलिस में बैठते हैं या उठते बैठते हैं या फारग बैठते हैं, हमारी ज़बानें तो पाक है ना, हर वक्त हमारी ज़बानें पाक है। अगर आप कभी उठते बैठते सोते जागते इस पाक ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक मर्तबा कहती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि इसका महल तैयार करना शुरू करो। आप पढ़ती रहती हैं और फरिश्ते एक एक ईंट उठाते हैं, उठाकर महल तैयार करते रहते हैं। और वो ईंटें भी ऐसी नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी तशबीह जन्नत से नहीं दी जा सकती है। थोड़ा सा बेदार हो जाइए, मैं आपको जन्नत में ले गई हूँ। अब जब आप जो है वो मुसलसल पढ़ते रहते तो वो ईंटें रखते रहते। वाह, सुभान अल्लाह। अब जब आप खामोश हो गई फरिश्ते भी बैठ गए, उधर ईंटें रखी और बैठ गए। अब दोबारा आपने पढ़ने शुरू किया, फिर ईंट उठाई और फिर बनाना शुरू कर दिया। यानी ये अमल एक ऐसा अमल है, अगर आप उठते बैठते कर रही हैं तो जन्नत में आपके महल बन रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो महल अगर इसमें आमेज़श कर दी जाए मोहब्बत अली की, सुभान अल्लाह, इश्क अली की अगर आमेज़श कर दी जाए, या अली, या अली,
या अली मकान और खूबसूरत बन जाएगा अगर उसमें इश्क आली डाल दिया जाए। यानी मुझे इस तरफ नहीं आना है, मुझे जाना है अभी इब्राहिम के पास। इब्राहिम सदीक नबी है, सच्चा नबी है। परवरदिगार जो इससे बड़ा होगा वो इससे ज्यादा सच्चा होगा। वाह वाह क्या बात। अभी सब नहीं बोले। जो इब्राहिम सच्चा नबी है, जो इससे बड़ा होगा वो इससे भी बड़ा सच्चा होगा। यानी इब्राहिम है सद्दीक, जो आखिर में आ रहा है वो है सैयदुल अंबिया, वो है सैयदुल मुरसलीन, वो है खातमुन नबिय्यीन। बोले वो जिसको माना दे अली पढ़ के दूध पिलाती रही है, आया आखिर में है, बड़ा नबी है सबसे, खातमुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, सैयदुल अंबिया, आखिर में आए बड़े नबी है। इब्राहिम फकत सद्दीक है और मोहम्मद मुस्तफा सद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। या अली या अली या अली पंचनी पढ़णारे 1.25 लाख नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मौला की शान पे बुलंद से बुलंदतर सलावत। बहुत जल्द आपकी ज़हमतें तमाम कर रही हूँ। सद्दीक है इब्राहिम, बेशक सच्चा नबी है, लेकिन सबसे सच्चा जो है वो मोहम्मद मुस्तफा। बेशक और बस हमने सच्चों के साथ रहना है। बेशक जो बेशक चाहता है सच्चों के पास आ जाए, बेशक। तो उसे चाहिए सदीक अकबर के पास आए। बेशक। अब जब हम गए सदीक अकबर के पास, आपने पूछा किसी ऐसे शख्स की निशानदही कर दीजिए ताकि जब भी हमें कोई मुश्किल आ जाए तो हम इसके दर पर आ जाएं। बेशक। तो अल्लाह के सदीक अकबर नबी ने, बस आखिरी जुमला है, सदीक अकबर नबी ने ये बात कही कि देखो, अगर चाहते हो तो निजात पा जाओ, अगर चाहते हो कि आखिरत में तुम्हें निजात मिले, चाहते हो कि बरज़ख में आराम मिले, चाहते हो पुल सिरात से गुजर जाओ, चाहते हो जन्नत में महल बन जाए, चाहते हो कि आखिरत की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, तो मेरी बताई हुई बातों पर अमल करना। एक ऐसा शख्स दिखा रहा हूँ जैसा शख्स किसी ने ना दिखाया होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ये है वो शख्स, इसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है। यही रसूल खामोश नहीं हुए। कहा जब तुम चाहो कि पुल सिरात पे गुजरो तो जो भी जिसके दिल में भी मोहब्बत अहले बैत होगी, सब पुलिस सिरात पे खड़े होंगे। सरहाने की तरफ मौला खड़े होंगे, पुलिस सिरात की एक तरफ किनारे पे मेरे मौला खड़े होंगे। अब पुलिस सिरात से गुजरना होगा सब लोगों को, मुझे भी गुजरना है, मुझे भी गुजरना है। अल्लाह जाने कैसा होगा, सुनने में तो यही आता है कि बहुत खतरनाक है। अब अल्लाह मौला जाने या अली जाने, और हम बेचारे तो अमाल तो हमारे ऐसे ही है ना कि हम बयां करने के काबिल नहीं है। अब या अली जाने और पुलिस सिरात जाने, हम क्या जाने, हम तो गुनाहगार हैं। आखिरत की जितनी मनाजिल है मौला के सपुर्द हैं, मौला जाने और आखिरत की मनाजिल जाने। रसूल ने कहा कौन है ये रसूल, ये सदीक अकबर है। कहा देखो जब सब लोग वहाँ खड़े होंगे पुलिस सिरात के किनारे पर, वहाँ पे तुम्हारा मौला खड़ा होगा, वहाँ पे मौला खड़ा होगा। अब अकेला खुद को नहीं सदीक अकबर कहा, इसको सदीक अकबर तो अल्लाह ने कहा है ना कि मोहम्मद मुस्तफा सदीक अकबर है, लेकिन मोहम्मद किसको सदीक अकबर कह रहे हैं। कहा वहाँ मौला खड़े होंगे जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी, जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, वो पुलिस सिरात पे कदम रखेगा। अब मेरा मौला वहाँ पे खड़े होंगे, जो अली का चाहने वाला आएगा। माशाल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने सारी तकरीर में आपसे कोई दाद नहीं मांगी है, आप जरूर अपने माँ को सलामी देना। रसूल ने कहा है, इसका उस रसूल ने कहा है जो सदीक अकबर है, जो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। माशाल्लाह सुमा माशाल्लाह, रसूल ने कभी झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बोला है। वो सच्चा नबी कह रहा है, वो सदीक अकबर कह रहा है। कहा पुलिस सिरात लगा होगा,
किनारे पे मेरे मौला खड़े होंगे और लोग आ रहे होंगे। जिसके दिल में मोहब्बत अली होगी मेरे मौला पुले सिरात से कहेंगे, ऐ पुले सिरात इसे छोड़ दे, ये मेरा है। सुभान अल्लाह। अब जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं का इसे ले ले, ये तेरा है। सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। अल्लाह ने इब्राहिम को सदीक कहा, अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को सदीक अकबर कहा। तवज्जो चाहती हूँ, सदीक अकबर कहा, लेकिन अल्लाह का रसूल किसे सदीक अकबर कह रहा है? एक मर्तबा अली के चेहरे को देख के कहा था, ये है वो सदीक अकबर। हैदर, 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 सब मिलके बोलो, हैदर, 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 नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला अली की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। मेरी आप सब मोमिनात से एक गुजारिश है, इतना बड़ा हमारा मजमा है लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आती, प्लीज खुदारा सब बोला करें। गर्मी कैसे लगे, हम भी तो बोल रहे हैं गर्मी लगे। यार इतना बड़ा हमारा मजमा, हम तो अली वाला तो एक हो तो पता चल जाता है, तो हम तो इतनी ज्यादा है। अकबर की दर पे गोद पे लेटे हैं चैन से, कांटों की गुफ्तगू है शहे नूर लैन से, आवाज आ रही है मोहम्मद के जैन से, देखो हुसैन मुझसे है मैं हूँ हुसैन से। माशाल्लाह। अब देखना हो जिसको भी बचपन रसूल का, वो आज आके देख ले पोता बतूल का। माशाल्लाह। नारे हैदरी। या अच्छा, ये बात बता के चलो फिर मंजिल मसाइब पर कि एक ही हस्ती है जिसका जिक्र दो काम करता है, बेशक, जिसका जिक्र दो काम करता है। अच्छा, आजकल साइंस ने जो है वो ये तरक्की कर ली है और उसने एक मशीन बनाई है जो सर्दियों में चलती है तो गर्म हवा देती है, गर्मियों में चलती है तो ठंडी हवा देती है। बेशक, अब अल्लाह ने ये इतने साल पहले बेशक एक्शन किया हुआ था। तवज्जो, अल्लाह ने अभी दुनिया बनाई है और अल्लाह ने ये सिस्टम बना दिया था। एक हस्ती को अल्लाह ने खल्क किया जिसका जिक्र जो है वो दो काम करता है। अगर उसका जिक्र किया जाए, जो मुनकर होता है वो जल जाता है, जो मोमिन होता है वो ठंडा हो जाता है। सारे ऐलान भी समाप्त फरमाते चलिए। अगर हम अली से ना बोले तो अली का जाता कुछ नहीं, अगर अली हमसे ना बोले तो हमारा रहता कुछ नहीं। इसलिए बुलंद आवाज में नारा हैदरी, 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 हैदरी। मौला की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। सल्ले अला मुहम्मदिन वाले बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे पास कुछ नहीं रहता अगर अली हमसे बेशक ना बोले। कयामत में जब हम जाएंगे तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बार बार कह रही हूँ खुदा ना करे, अगर अली मौला ने कह दिया ये मेरा नहीं है फिर क्या बेशक करेंगे? हमारा कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा हमारा और दुनिया में भी कुछ नहीं रहता। अच्छा, ये ऐलान से बात फरमाते चलिए कि कल इसी अज़ाखाने में मेहंदी की है जी जी मेहंदी है, शबीह जो है वो हसरत जनाब परवा है और आप सबसे जो है वो ये इल्तमास है कि वैसे ही आइए जैसे कोई गरीब माँ बच्चे की मैयत पे आती है। इमाम बारगाह में जो है वो शबीह अलम बरामद होगा, तो आप सबसे ये इल्तमास है बिलखसूस माशाल्लाह से पहले इमाम बारगाह में है शबीह अलम और बाद में इसी अज़ाखाने में शबीह मेहंदी बरामद होगी। पहले इमाम बारगाह में है और फिर जो है इसी अज़ाखाने में, और 8 को पहले यहाँ होगी और फिर इमाम बारगाह में होगी और 9 को भी पहले यहाँ होगी फिर इमाम बारगाह में शबीह बरामद होगी। वो तो आप सब जानते हैं कि शबीह जितनी बरामद होती है माशाल्लाह से हमारा मजमा इतना अच्छा है कि कभी उसके सर से मैंने दुपट्टा उतरा हुआ किसी खातून के सर से नहीं देखा है, लेकिन एक तज़क्कुर के तौर पे अगर कोई बाहर से आई हुई खातून अपने सर से दुपट्टा उतारती है तो उसे एहतरामन अकीदत से आजिज़ी के साथ उसे मना कीजिए। देखिए अल्म अब्बास हमारे सर के ऊपर, ये हजरत ज़ैनब है,
आप और मैं क्या जाने ये इस चादर की कीमत क्या है। आप और मैं नहीं जानते हैं, हमें तो ये ऐसे ही मिल गई और हमने ऊपर ले ली, ओढ़ ली। इसकी कीमत फकत ज़ैनब अलिया जानती है, जिन्होंने इसकी कीमत अदा की। हल्की नहीं है इसकी कीमत, बहुत वजनी है। आप जानते हैं इस चादर की कीमत जो है वो अपना पूरा घर लौटा कर बीबी ने अदा की है। एक जुमला कहती चलो, बीबी जब गई है ना रिहाई के बाद घर, सारी जिंदगी जनाबे ज़ैनब सीधी नहीं लेट सकती, कमर के बल लेट नहीं सकती थी। बहुत आसानी से आपने जुमला लिया है। जनाबे ज़ैनब, एक बार फिर कह रही हूँ, जो लफ्ज़ बदल देती हूँ, यानी कमर के बल बीवी सीधा लेट नहीं सकती थी। मैं सवाल करूंगी बीवी ऐसा क्यों? कहा यही इस चादर की कीमत अदा की है। जहाँ काफिला रुक जाता था वहाँ ताज़ियाने बरसाए जाते थे। क्या अली की बेटियां इस काबिल थी तो ताज़ियाने बरसाए जाते? क्या अली की बेटियां इस काबिल थी कि वो जंगलों में आकर यूं उजड़ जाती? जो अली की बेटियां नाजों से पली, वो जंगल जो बयाबान है, सहरा है, 10 मुहर्रम का दिन है, लाशों पे लाशें गिर रही हैं, जंग हो रही है, एक एक बीबी का बच्चा जा रहा है, एक एक बीबी का वारिस जा रहा है। असरे अशूर के बाद एक ऐलान हुआ, कहा लूटो तबर्रुकाते अली और बदलो का बना, जिसकी आंख पे बीबी की मोहर है वो जरूर बोलेगा। कहा लूटो तबर्रुकाते अली और बदलो, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। खयाम को आग लगी तो बीबियां बिखर गई। बीबी बच्चों को तलाश करती करती बयाबान में आ गई। वहां देखा बीबी ने एक ढेर है जहां तलवारें टूटी हुई है। बीबी ने वहां रुक के एक सवाल किया, कहा आईना आईना आखी, मेरा आखी कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? उसके बाद जब बीबी ने थोड़ा पहचान लिया ना हुसैन आका को, तो बीबी ने कहा अंता आखी, तो मेरा भाई। की रिवायत 11 मुहर्रम को भी है कि जब बीबी कैद होके जाने लगी है तो हुसैन की लाश पे आई है बीबी, और आके जब कटी हुई उंगली को देखा ना तो बीबी ने कहा अंता आखी, तू मेरा भाई है, तो मेरा भाई हुसैन है। भाइयों वाली तो क्रिया कीजिए ना, जिनके भाई ने खुदा सलामती दे, आपके भाई का घर सलामत रहे, उजड़ गया ज़ैनब अलिया का भाई का घर, बीबी के भाई मारे गए, सैयदा की हवेली वेरान हो गई। तो मेरा भाई है। आवाज आई कटी हुई गर्दन से, बीबी ने सवाल किया था हुसैन तेरी उंगली किधर है, कौन ले गया? हुसैन तेरे हाथ की उंगली को किसने काटा? जवाब पर मौला ने कहा तेरी चादर कहाँ है? क्या तू मेरी बहन ज़ैनब है? तो मेरी बहन ज़ैनब है। ज़ैनब तेरी चादर कहाँ है? ये हुसैन है जो तपती हुई रेत पे पड़ा है। हुसैन के पाँव या दोषे पैगंबर पे आते थे या जिसमें मोहम्मद पे आते थे। आप जानती हैं मेरे मौला ने चलना जिसमें मोहम्मद पे सीखा था। आए 10 मुहर्रम अल हराम, जहाँ सारे नबी इकट्ठे हो गए, सब देख रहे इम्तिहान हुसैन को। आदम से लेके मुतमल्लक पे आता हर नबी वहाँ मौजूद है। अकेला हुसैन मारा जा रहा है, अकेला हुसैन की बात, वहाँ एक माँ भी है, माँ बैठी है, एक
सैयदा अपने घर से किसी को खाली नहीं लौटा, दूसरा उसको अदा करती है। उजड़ गया ना सैयदा का बाल, प्यास से ज़िबान हो रही है। मैं बताऊं हुसैन आका की प्यास कैसी प्यास थी। हुसैन आका की प्यास जब जनाब सैयदा इस दुनिया से जाने लगी ना, तो वो सैयद ने कहा था बीवी ने, या अली मेरे बच्चे को बड़ी प्यास लगती है, मेरे बच्चे की प्यास का ख्याल करना। अभी 10 मुहर्रम करीब आया है, 2 या 3 दिन के बाद 10 मुहर्रम है ना, और गर्मी का मौसम है। प्यास का अंदाजा लगा सकते हैं ना, प्यास कैसी होती है। जो 3 दिन का प्यासा था, बहुत आराम से कह रही है, 3 दिन का प्यासा था, और इतना प्यासा था, इतना प्यासा था। जनाब समीना कहती जब मेरे बाबा को मारा जा रहा था, तो मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से ऐसी आवाज आती थी, अल्लाह मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बेटियां बैठी हैं, हर बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है। 4 कदमों के फासले पर जिस बेटी ने कहा मेरे बाबा के लिए दुआ करें, अल्लाह से मिल गए, मांगो हुसैन से अपने बाबा की से समीना की यतीमी का सदका, इसको यतीमी के नाम से बचा लीजिए, इसके बाबा को सेहत दीजिए मौला। जिनके बाप का साया उनके सर पे नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। 4 कदमों के फासले पर सकीना खड़ी हाथ जोड़ के कह रही है, मिन्नतें कर रही है, मेरे बाबा को ना मारना, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा है, इनके जाने से मैं यतीम हो जाऊंगी। शुक्र लगी एक कातिल ना मार मेरे बाबा को, ना मार मेरे बाबा। हाजरों को खुदा आपको हौसला अता करे। सकीना 4 कदमों के फासले पे खड़ी होके दुआ कर रही है, परवरदिगारा मुझे यतीमी के नाम से बचा ले। सारी रात पूछती रही यतीमी क्या है, मुसलसल शिब्र मंजर चला रहा। थोड़ी देर के बाद एक साथ लोग के नेज़े पे आए, सांस ले लीजिए। एक साथ थोड़ी देर के बाद नौ के नेज़ा पे आया तो सदा गूंजी, कद कोतेल अल हुसैन में करबला, कद ज़ुबिह अल हुसैन में करबला। हुसैन करबला में मारे गए, इधर करबला में ज़लज़ला आया। अब यतीमी समझने के लिए सकीना की तरफ चलो। अब जब हुसैन का सर नौ के नेज़ा पे है ना, वही हाथ उठा जिसने सकीना के बाबा को ज़िबा किया था। एक हाथ से सकीना के बालों को थाम लिया, दूसरे हाथ से अपने रिसालत अता किया। हाथ जोड़ के तड़प के सकीना ने कहा, बाबा सारी रात पूछती रही यतीमी क्या है, बाबा मुझे पता चल गया। मुझे पता चल गया यतीमी क्या है। बाबा बाबा बाबा, बस एक मैं जनाब सकीना का कहूँगी, बाबा बच्चियाँ छोटी हो गई, तो जब बाबा कहीं से आए ना घर, बाप और बेटी की मोहब्बत एक अलग मोहब्बत है ना, फितरतन ये मोहब्बत रखी है ना। खुदा आपके वालिदैन को सलामत रखे, खुदा आपका भाई का घर सलामत रखे। बाप और बेटी की मोहब्बत एक अजब मोहब्बत है ना। बाप कहीं चला जाए ना, फिर घर आए, तो बेटियां बड़े शौक इश्तियाक से बाबा से लिपट जाती है, और लिपट के फिर बाबा से अपने छोटे छोटे दुख बयान करती है। 4 साल की सकीना सामने बाबा को ज़िबा होते देखा, सामने जुमला है, सामने ज़िबा होते देखा। अब कई अरसे के बाद सकीना को हुसैन का सर मिला, और सकीना ने अपने लब हुसैन के लबों पे रखे। बाबा मुझे यतीम किसने कर दिया, आपकी गर्दन किसने काट दी। बाबा बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा को सकीना को सामने लाइए। बाबा देखिए जो दूर आपने दिए थे वो जालिम ले गए।